welcome back to the channel. Today I am in Kochi, which is home to one of Kerala's most luxurious villas. Right on the banks of the backwaters of Kerala, welcome to Bema's Lake House. And in this video, I will be taking you along with me as we stay here for 2 nights, sharing what it's like to experience 5-star hospitality, food and comforts in such a beautiful location. And if you guys don't know, in this playlist, we are road tripping across Kerala with Marvel Tours, exploring some of the most luxurious villas Kerala has to offer. It's a 12-day road trip from Periyar to Munnar to Vagamon to Lake Vembanad to Alleppey and back to Kochi. All these places have some really ultra premium villas and I cannot wait to share all of them with you. So make sure to check out the playlist after you see this video. Anyways, put on your headphones and let's get this video started. Hey guys, welcome back to the channel and welcome to another video. Today I am in this beautiful place in Cochin called as Bema's Lake House. This is very close to Cochin, very close to Ernakulam and right on the banks of a river. If ever planning on coming to Cochin and exploring Cochin, this is the place you must stay. It's absolutely beautiful. We are going to be staying here for 2 nights, just relaxing here and exploring Cochin, Ernakulam and the area nearby. And this entire thing has been organized by Marvel Tours. So big shout out to them. पूरा internal transport वो लोग ने manage किया है. All these properties वो लोग ने source की है for us to stay and experience. जो internal transport भी है हमारा सब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है. उन लोग की गाड़ी बहुत ही नई, बहुत ही मेंटेन्ड एंड ड्राइवर जी हमारे जो भूपति है, ही इज़ सो वेल इन्फॉर्म्ड, सो सेंसिटिव, वेरी वेल एजुकेटेड. यहाँ के एरिया के बारे में सब पता है उनको. एंड फॉरगेट दिस एरिया, मोर देन दिस एरिया, ही इज़ सो वेल अवेयर ऑफ एवरी स्मॉल थिंग इन केरला. सो big shout out to them. And if you guys are ever coming to Kerala, want to explore Kerala, need internal transport or just anything else, need recommendations, contact them. वो लोग का contact info description में रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा. So big shout out to them. So let me first give you small tour of this place. Sunset का time हो रहा है, perfect lighting है, तो let me start with that. So this villa is basically in this suburb called as Panangarh in Kochi, right? And it's facing the backwaters. So location तो already amazing है. This villa basically celebrates यहाँ के जो लेडी थे बेमा करके. शी वॉज वेरी स्पिरिटेड लेडी. उनको कुकिंग बहुत पसंद था, लोगों को खिलाना पिलाना बहुत पसंद था, हॉस्पिटैलिटी बहुत पसंद थी. सो बेसिकली इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ अ स्पिरिट ऑफ होस्टिंग, ऑफ सेलिब्रेटिंग, ऑफ गिविंग, राइट. सो ये पूरा उनके फंडामेंटल्स में फिलोसॉफी बनाया गया कि जो भी आए अच्छे से केयर करो, अच्छे से उनका ध्यान रखो. अतिथि देवो भव जो बोलते, ऑल विजिटर्स आर वेलकम. दैट इज़ द फंडामेंटल फिलोसॉफी ऑफ दिस प्लेस एंड यू कैन सी इट इन ऑल द स्टाफ एंड द एंटायर SOP ऑफ दिस प्लेस, राइट. सो मेन यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया है. डाइनिंग एरिया भी स्पेशियस है एंड वो जो बेमा है उनके पूरे यहाँ पे फोटोज़ है, उनकी फिलोसॉफीज़ है, पूरे हिस्ट्री के बारे में. एंड अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस जो मैंने कहीं पे नहीं देखी, जो किचन जो है वो लिटरली अटैच्ड है टू द डाइनिंग एरिया. सो दैट्स सो कूल, राइट. तुमको अपना खाना फ्रेश बनते हुए दिख रहा है. सो दैट्स सो एपेटाइजिंग व्हेन द शेफ इज़ कुकिंग, इज़ राइट देयर एंड गरम गरम आपको खाना वहीं से मिलता है. सो दैट्स प्रीटी कूल. दैट इज़ द मेन डाइनिंग एरिया. एंड वंस यू कम आउट फ्रॉम द डाइनिंग एरिया देयर आर लाइक 3-4 चिल लॉन स्पेसेस. ओके, सो एक डाइनिंग एरिया के सामने लॉन स्पेस है, यहाँ पे 2-3 टेबल्स है, हैमॉक्स है एंड ऑफ कोर्स बैक वाटर फेसिंग है, राइट. सो इट बिकम्स अ वेरी परफेक्ट प्लेस फॉर सनसेट बिकॉज द प्रॉपर्टी इज वेस्ट फेसिंग. ओके, सो दैट ऑल्सो वेरी चिल स्पेस नेक्स्ट टू द पूल. ओके, पूल के लेफ्ट में भी एक लॉन है विद हैमॉक एंड एवरीथिंग एंड पूल के सामने भी एक लॉन एरिया है वेयर देयर इज अ स्मॉल लिटिल गजीबो एंड गजीबो इज ऑल्सो अगेन वाटर फ्रंट फेसिंग. सो लॉट्स ऑफ चिल स्पेसेस, वेरी वेल मेंटेन गार्डन है, लाइक काफ़ी बड़े हैं गार्डन्स. सो लॉट ऑफ स्पेस फॉर पीपल टू वॉक. एंड मेरे पीछे एज यू कैन सी यहाँ पे 2 विला है एंड एक पूल है. सो ये टोटल यहाँ पे 2 पूल विला है एंड एक वाटर विला है जो दूसरे साइड पे है. सो टोटली दिस प्लेस कैन अकोमोडेट अप टू 6 पीपल. वेल हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी पे अकेले हैं. सो दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑल अप टू अस. पूरा हम लोग को प्राइवेसी है इसका. एंड दिस इज़ द मेन पूल एरिया. पूल इज़ सो कूल, लाइक ऐसा पूल मैंने नहीं देखा है इन एनी प्रॉपर्टी. सो इट्स लाइक अ सेमी सर्कुलर पूल एंड एक बीच में से कैनाल जाती है बिटवीन बोथ द विलाज. ओके, सो इट्स लाइक अ पूल दैट इज कनेक्टिंग बोथ द विलाज एंड यू कैन बेसिकली वॉक फ्रॉम योर रूम to the pool. Okay, so पैर अपने गीले करते करते you walk into the pool,
that is a very nice touch, very nice vibe to the entire place. And of course यहाँ पे recliners रहते हैं for sunbathing and everything. If talking about the villas, काफ़ी modern है compared to our last place, so this is quite modern. दोनों villa का एक अच्छा backyard है. पूरे जगह में you feel a lot of airiness and the wind is always blowing from this property क्योंकि wind direction इसका बहुत अच्छा है. Even when we were sitting for lunch, दोपहर में मार्च के टाइम पे बैठे थे, but still it was so windy कि आपको घर में फील ही नहीं हुई. 30 to 30 degrees में you don't even feel the heat. Right, and let me give you a room tour as well. Once you enter the villa, the first thing comes is the luggage area. Luggage area पूरा अलग है, and attached to the luggage area is a small bathroom. So basically once you come from the pool, अगर आपको अपना living या bedroom area गंदा या गीला नहीं करना है, you can directly first get into that bathroom, wash yourself, come out अच्छे से तैयार होके and get to the living area. Living area में 2 stoned sofas area है with nice mattress. Okay, so पूरा like पत्थर के bed पे mattress लगाया हुआ है. Nice टच, नाइस सोफ़ा, वेरी अर्दी फीलिंग. सामने टीवी है, मिनी बार है, फ्रिज है, कॉफ़ी मेकर है, ऑल मॉडर्न एमिनिटीज़. एंड उसके बाहर ही भी बैल्कनी है. सो फ्रॉम द लिविंग एरिया ऑल्सो यू गेट व्यूज़ ऑफ द बैक वाटर ऑफ द गार्डन ऑफ द पूल. एंड राइट नेक्स्ट टू द लिविंग एरिया इज़ द बेडरूम. ओके, बेडरूम भी अगेन ऐसे स्टोन्ड प्लेटफॉर्म पे है. वेरी कंफर्टेबल बेड्स, रखने के लिए वार्डरोब है, सब लॉकर्स है, एवरीथिंग ऑल दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 5-star प्रॉपर्टी. राइट, कि भाई इतना तो एमिनिटीज़ रहती है. एंड दूसरा एक बाथरूम है, वेरी स्पेशियस बाथरूम. दोनों शावर चेम्बर्स अलग है, पूरा कमोड एरिया अलग है, एंड ऑल डेंटल किट रहती है, शैम्पू, शावर जेल्स, एवरीथिंग इज़ ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी. कुछ लो क्वालिटी का तो यूज़ ही नहीं होता है यहाँ पे इन ऑल दीज प्लेसेस. एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग एनीथिंग. ओके, सिर्फ अपने कपड़े लाओ एंड एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड हियर. एंड बाहर एक अनदर चिल स्पॉट है राइट आउटसाइड योर बेडरूम, लाइक अ स्मॉल बैल्कनी विथ स्मॉल चेयर्स एंड टेबल्स. मॉर्निंग कॉफ़ी चाय वहाँ पे भी कर सकते हैं. सो दैट बेसिकली इज़ इट. दिस इज़ द बेमास लेक हाउस. और छोटे छोटे बहुत ही क्यूट लिटिल स्पेसेस हैं ऑन दिस प्रॉपर्टी दैट आई जस्ट कैनॉट डिस्क्राइब विद वर्ड्स. आई जस्ट हैव टू शो यू विद द वीडियो. एंड यहाँ पे और करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है. यहाँ पे खुद का एक बोट है विच दे कैन टेक ऑन द बैक वाटर, सो दैट्स प्रीटी कूल. यहाँ पे फिशिंग करवा सकते हैं, बाजू में एक विलेज वॉक करवा सकते हैं, राइस फील्ड में वॉक रहता है, एंड कयाकिंग एंड फिशिंग भी होती है. सो लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन एज वेल. सो देयर वोंट बी अ डल मोमेंट वेन एवर यू कम हियर. बट दिस इज़ अ प्लेस वेर यू वांट टू रिलैक्स एंड एक्सप्लोर कोच्चि एट द सेम टाइम. ओके, सो दोनों आपके एजेंडा में है. सो डेफिनेटली थिंक ऑफ दिस प्लेस. एंड फूड भी बहुत अच्छा है इसका. शेफ़ ने जो खाना बनाया आज पूरा केरला स्टाइल फूड था. आज शाम को ही विल बी मेकिंग चाइनीज़. टुमारो आफ्टरनून का लंच विल बी सी फूड का पूरा एक पास्ता है. सो यू नो काफ़ी डाइवर्स शेफ़ एंड कुकिंग स्टाइल है यहाँ पे. लोकल भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, इंटरनेशनल भी है. सो दैट्स प्रीटी कूल राइट. सो आज का फर्स्ट इवनिंग हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं. फर्स्ट इवनिंग थोड़ा रिलैक्स करेंगे. गर्मी है थोड़ा, तो अच्छे अच्छे फ्रेश लाइम वाटर्स मंगाए हैं. वी जस्ट गोइंग टू बी सिटिंग बाय द वाटर फ्रंट एंजॉइंग द सनसेट. थोड़े इवनिंग के शॉट्स देखो एंड आई सी यू गाइज सून. चलो. Hey guys, good morning and welcome to second day at बेमास लेक हाउस. जस्ट उठे हम लोग, ब्रेकफास्ट के लिए आए. नाइट बहुत कंफर्टेबल गई. कल रात को हम लोग ने सनसेट तो देखा एंड पूल में जो एंजॉय किया है कल, लाइक एक साइड पे फुटबॉल मैच चालू था. मस्त में लाउड स्पीकर पे हमने कमेंट्री लगा दिया उसका. एंड वेरी नाइसली ये लोग जो भी चाहिए तुमको, छोटे मोटे मिक्सर्स चाहिए, नींबू पानी चाहिए, कॉकटेल्स के लिए बेस चाहिए, वो सब आपको लेकर आते हैं. एंड द गुड पार्ट अबाउट ऑल दिस प्लेसेस इज कि यू कैन ब्रिंग योर ओन अल्कोहल ऑल्सो. ओके, सो देर इज़ नो लाइक ओवर प्राइस सेलिंग ऑफ एनी अल्कोहल विच इज़ सो कूल राइट. क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मेक द मनी फ्रॉम ओवर प्राइस्ड अल्कोहल, बट यहाँ पे इफ़ यू कैन गेट योर ओन स्टफ इट्स एब्सोल्युटली फाइन विद देम. So they'll just make the base for your cocktail and you can just add your mixers. So all the places that we visited had the same fundamentals. So I think that's pretty cool for people who enjoy a small drink here and there. So that's pretty cool. Evening में हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा कोची एक्सप्लोर करने. So चलो, let's start this day and start exploring Kochi. So in the evening, we stepped out to explore Kochi. Did some shopping, checked out the water metro and explored the Fort Kochi area. All in all,
it was the perfect evening in Kochi. If you guys want to stay here, I will leave the links to this place in the description. Cost for staying here is 25,000 rupees per night. Definitely on the expensive side, but think of this place for special occasions or if you just want to pamper yourself. And with that, we said goodbye to this place and have come to the end of the Kerala series. It was so much fun exploring the most luxurious villas in Kerala. Big shout out to Moksha Stays who have curated and managed all these places. Get in touch with them if you want to stay here. I will leave their contacts in the description as well. We will now be continuing with the Thailand series from the next video. Until the next time, stay safe, keep on traveling. I'll see you guys very soon.